Good afternoon, students. My name is Raghavendra. I am a chemistry faculty. I used to teach both NEET and JEE students. Today I am going to start a new chapter, which is nothing but periodic classification. I wrote already. So this periodic classification is a chapter which is in the first PUC. That is the basic for all the inorganic chapters. This periodic classification के बारे में idea तो compulsory चाहिए. So otherwise, it is very difficult to understand the remaining inorganic chapters like group wise, P block as well as a D block and coordination compounds. So today we start this periodic classification. Before starting this periodic classification, so you should know what is classification and what is the need to classify the elements. So periodic classification मतलब elements को क्यों classify करूँ? So what is the benefit of this classification of the elements that we will discuss today. So before entering into the chapter periodic classification, you know very well in modern periodic table there are around 118 elements are there. So that is not a single number. So 118 elements का properties याद रखना तो that is very difficult task. So तो होता ही नहीं because the number is very large number. And one more thing, there is no similarity. There is no ऐसा नहीं है कोई दो एलिमेंट्स का एग्जैक्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेगा ऐसा कोई नहीं होता है कुछ नहीं होता है so that's why you have to study the elements separately but it is very difficult to study the properties of the 118 elements that's why what you have to do अभी क्या करना है so elements को हम अलग अलग separate group wise categories में separate करना पड़ेगा so otherwise it is very difficult to understand the properties of this 118 elements let us suppose एक एग्जांपल देता हूं मैं अगर मान लो कोई मेडिकल स्टोर में गया सो यू वेंट टू मेडिकल स्टोर अगर आपको टैबलेट पूछा है वो तुरंत आपको टैबलेट दे देता है विद इन सेकेंड विद इन मिनट 1 मिनट के अंदर आपको टैबलेट मिल जाएगा सो कैसे मिलेगा वो टैबलेट स्टूडेंट्स वो मिलेगा बिकॉज उन्होंने टैबलेट्स को एक तरीका में अरेंज किया होगा अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू द ड्रग एक्शन सो कुछ कैटेगरी में उन्होंने रखा है सो देन ओनली इजीली कैन पिक अप द टैबलेट एंड ही कैन गिव जल्दी आपको टैबलेट मिल जाता है सो दैट इज द थिंग जैसे आप घर में भी देख सकते हैं जो मदर होता है सो किचन का जो सामान है सारे अरेंज किया होता है अगर कोई नया बंदी वहां आके अगर खाना बनाए तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है सो दैट इज द थिंग व्हेन यू अरेंज द थिंग्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर उसके बारे में स्टडी करना और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है सो दैट विल बी वेरी ईजी टू understand that particular elements so that is nothing but classification here in modern periodic table the elements are arranged into different categories like groups and periods so accordingly we can understand the properties of the elements easily so that is nothing but periodic classification now we will discuss what is the necessity to classify the elements important necessity necessity to classify the elements or you can say the advantage of classification इसमें फर्स्ट वन आता है we can study them better देखो if you classify the elements or if you divide the elements into different categories so you can study them easily समझ में आता है The best example I will tell you, अगर आपने स्कूल में गए तो there are more than 1000 students also will be there in the school. So सारे चिल्ड्रन को कैसे उन्होंने according to the age, kindergarten, first class, second class, like that they are separated. And they used to sit in different classrooms. अलग अलग क्लासरूम में बिठाता है और अलग अलग लेक्चर्स वहाँ जाके पढ़ाता है और उसको मतलब समझ में आने के लिए कोशिश करता है. That is nothing but classification. Let us imagine if all the students 1000 students are sitting in a big auditorium बड़ा ऑडिटोरियम में बिठा और सबको पढ़ाई शुरू किया समझ में आता है क्या किसी को नहीं होता इम्पॉसिबल जैसे कॉलेज में भी देखो सो कॉलेज में भी अलग अलग सेक्शंस होता है सो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सेक्शन में बिठाते हैं और क्लास में 30 और 40 स्टूडेंट्स को बिठाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं फैकल्टी सो क्यों ऐसा करते हैं बिकॉज व्हेन यू सेपरेट द स्टूडेंट्स into class wise so 30 और 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत इजी होता है
वही ऑडिटोरियम में 500 और 1000 स्टूडेंट्स को बिठा के पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. दैट्स व्हाई यू हैव टू डिवाइड द एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, सो ताकि उसका प्रॉपर्टी इजीली समझ में आएगा. यूजुअली कैन स्टडी देम. दैट इज द फर्स्ट वन. द फर्स्ट एडवांटेज इज we can study them better, and the second one, we can correlate the elements on the basis of particular properties or particular parameters. So what is nothing but we can correlate. What is the meaning of correlate? Correlate means group together. जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होता है. लेट अस सपोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मेटल्स, एक्सट्रीमली मेटल्स होता है, उसको लेफ्ट साइड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में उसको डाल दिया. सो दैट इज नथिंग बट ग्रुपिंग ऑफ द एलिमेंट्स इनटू पर्टिकुलर. दैट मींस ग्रुपिंग द एलिमेंट्स टुगेदर. दैट इज नथिंग बट कोरिलेशन. ठीक है, कोरिलेशन. कोरिलेट द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज. जैसे सारे मेटल्स में एक साइड रख दिया, सारे नॉन मेटल्स में एक साइड रख दिया. सो लाइक दैट ग्रुपिंग जैसे होता है. फर्स्ट पीयू स्टूडेंट्स को एक क्लास में बिठाता है, ठीक है, और सेकंड पीयूसी क्लास को सेपरेट क्लास में बिठाता है. सो दैट इज नथिंग बट कोरिलेशन. कोरिलेशन मींस ग्रुपिंग टुगेदर. जैसे प्रॉपर्टी सिमिलर होता है तो उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं. सो फर्स्ट ही ग्रुप होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे वैलेंसी 1 होता है. जैसे वैलेंसी 1 होता है ना, सारे एलिमेंट्स के एक ग्रुप में डाल दिया. ठीक है. सो लाइक दैट कोरिलेशन मींस ग्रुपिंग द एलिमेंट्स in together on the basis of particular properties. So these two are the nothing but the advantage of the classification of the elements. ये दोनों एडवांटेज आपको मिल जाएगा जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया तो. सो जैसे ये क्लासिफिकेशन अभी से नहीं है, बहुत पुराना से क्लासिफिकेशन चालू किया है साइंटिस्ट ने. बट लेकिन हर क्लासिफिकेशन में कोई ना कोई मिस्टेक होता है, ड्रॉबैक होता है, इसलिए सारे क्लासिफिकेशन से रिजेक्ट कर दिया. जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सो एक दो ड्रॉबैक्स है, फिर मैक्सिमम जो ड्रॉबैक्स रिजॉल्व हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसलिए हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को द बेस्ट बोलते हैं. ठीक है. सो नाउ विल डिस्कस द ओल्ड क्लासिफिकेशन. जो साइंटिस्ट ने पहला वाला, जो बहुत पुराने साइंटिस्ट एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, वो कैसे किया है और उसका ड्रॉबैक से हम डिस्कस करेंगे अभी. अमंग द फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशंस. ओल्ड क्लासिफिकेशंस. फर्स्ट वन एंशिएंट साइंटिस्ट. सबसे पुराना बिफोर एसी. ठीक है. सो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट होता है, एंशिएंट साइंटिस्ट, उसको कुछ नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में उतना, इसलिए उन्हें क्लासिफिकेशन दिया है. अकॉर्डिंग टू देम जो एलिमेंट्स है 4 कैटेगरीज है. एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर. ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है. ऑफ कोर्स ये सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, but we should know. That's why I'm explaining this one. So here the elements are classified into how many categories, students? 4 categories. क्या है वो? First one is earth, and second one is air, and the third one is fire, and fourth one is the water. अब एक बार ध्यान से देख के बताइए, इसमें कोई एलिमेंट है क्या जो अर्थ होता है? दिस इज नथिंग बट ए मिक्सचर है. और एयर होता है, सो एयर इज आल्सो ए मिक्सचर. यू नो एयर, व्हाट इज द मिक्सचर? एयर में क्या रहता है? So air consists of mainly oxygen, nitrogen and carbon dioxide as well as water vapor. ये सारे रहता है इसमें. So earth is a mixture है, एलिमेंट है नहीं. आपको अर्थ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएगा. Combination of elements is nothing but a mixture. So air is also a mixture, but fire is not an element. Fire किसी का स्पेसिफिक होता है क्या? फायर किसी का स्पेसिफिक नहीं है. जैसे आपने पेट्रोल जलाओ तो फायर बनता है, जैसे कागज भी जलाओ फायर बनता है. सो फायर इज नॉट पर्टिकुलर, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द वाटर? सो इट इज ए नथिंग बट ए कंपाउंड. वाटर इज ए कंपाउंड. सो वाटर के अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जैसे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, और लेकिन कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें. सो ये सही क्लासिफिकेशन है, गलत क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स? बिल्कुल गलत है, इसलिए क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया. रिजेक्टेड. एंड द नेक्स्ट वन
लावोशियर सेकेंड टाइम। तो लावोशियर ने एलिमेंट्स को ऐसा क्लासिफाई किया है, सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है लावोशियर। The first one is nothing but metal and another one is a non-metal. ठीक है, फर्स्ट वन इज मेटल, अनदर वन इज अ नॉन मेटल। आपको पता होगा स्टूडेंट्स व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल्स इन लोअर क्लासेस आपने पढ़ लिया होगा। जो मेटल्स होता है दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। जैसे मेटल्स क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है मेटल्स, और उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होता है, और दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है वो, और दे हैव लस्टर्स और शाइनी सरफेस। हम जैसे गोल्ड को प्लैटिनम के हम ज्वेलरीज में यूज करते हैं ना, ज्वेलरीज में, बिकॉज ऑफ उसका लस्टर्स नेचर होता है। सो एंड दे प्रोड्यूसेस ए पर्टिकुलर साउंड, ट्वांगी साउंड, सो दैट इज सोनरस नेचर, सोनरस, और दे हैव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे फॉर्म अलाइज। सो जैसे एलिमेंट्स है जो जो मेटालिक प्रॉपर्टीज होता है उसको मेटल्स में डाल दिया, दे हैव मेटालिक प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स which have metallic properties they are placed under metals। जैसे नॉन मेटल है, सो नॉन मेटल क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा मेटल से डिफरेंट होता है। सो नॉन मेटल्स मेनली गैस स्टेट में रहता है जनरली, आपको पता होगा जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सो फ्लोरीन, क्लोरीन सारे क्या होता है, सो गैसेस नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स मैक्सिमम गैसेस ही होता है, ऑफ कोर्स सॉलिड्स भी है लाइक आयोडीन, और लिक्विड एक की नॉन मेटल है। सो व्हाट इज द लिक्विड नॉन मेटल स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट ए ब्रोमाइन। ठीक है, सो जैसे नॉन मेटल्स गैस स्टेट में होता है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, सो रूम टेम्परेचर में गैसेस है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, और दे आर नॉन मैलिएबल। सॉरी यहाँ मैं भूल गया था, मेटल्स आर मैलिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलिएबिलिटी, वी कैन मेक देम इनटू थिन शीट्स। आपने देखा होगा जो एल्यूमिनियम है ना, उसका एल्यूमिनियम फाइल्स यूज करते हैं, दैट इज पतला शीट्स आता है ना, so that is malleability, and they are ductile also, metals are ductile also, but non metals are non malleable, non ductile, non sonorous, non lustrous। उसका शाइनी नेचर क्या नहीं होता है, बट एक्सेप्शन एक दो आयोडीन जैसे, so generally they are non lustrous and they have less mechanical strength। so जैसे ये मेटल का प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। so इसका होता है नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, अगर होता तो उसको नॉन मेटल्स में डाल दिया। ठीक है, ऐसे दो मतलब दो टाइप को क्लासिफाई किया है लावोशियर। बट आप इसमें देखा जाए तो ड्रॉबैक्स क्या है ना, ड्रॉबैक्स मतलब जो डिफेक्ट्स और डीमेरिट्स, उससे फर्स्ट वन, सो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ओनली टू कैटेगरीज, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू सिर्फ टू कैटेगरीज। ये सही नहीं है, कैटेगरीज जैसे इतना सारे एलिमेंट्स को सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड किया तो उसको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे 1000 स्टूडेंट्स का हम दो रूम में बड़ा रूम में डाल दिया, मतलब ऑडिटोरियम में डाल दिया, 500 कुछ यूज है क्या, यूज होता है क्या, नहीं होता है। सो इसलिए ये दो एक ड्रॉबैक है, और दूसरा है मेटलाइट्स। सो आपको पता होगा मेटलाइट्स क्या होता है, मेटलाइट्स होता है वो मेटल को और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज उसका कॉमन होता है, मींस इसको कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज होता है एज वेल एज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज होता है। ऐसा नहीं सोचना स्टूडेंट्स, नॉन मेटलाइट्स मतलब सारे मेटालिक सारे नॉन मेटालिक ऐसा नहीं होता, सम ऑफ द मेटालिक प्रॉपर्टीज होता है, सम ऑफ द नॉन मेटालिक कॉमन प्रॉपर्टीज होता है। इसलिए हम तो मेटलाइट्स का पोजीशन कहाँ डाले, जब मेटल में नहीं, मेटल में डाला तो फिर उसका नॉन मेटल प्रॉपर्टीज भी है, अगर नॉन मेटल में डाले तो उसका मेटालिक प्रॉपर्टीज में, कैसे उसको सेपरेट करो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मेटलाइट्स, इसके बारे में सो ये लावोशियर नहीं बता पाया। ठीक है, सो दीज टू आर द ओल्ड क्लासिफिकेशंस, और ये भी रिजेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस टू ड्रॉबैक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट दिस इज द पार्ट 1। सो पार्ट 2 में इसका आगे क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। प्लीज स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।